So, very warm good evening to all of you. As we wait for our guest to join us and give his address, let us try to understand what this course is going to do and what we are going to do throughout the course so that we can utilize our time. Now, when you're looking at this course, many of you are already aware, you have seen the brochure, etc. So, we are calling it a 15-day certificate course in understanding the relation between media, society, and culture. So right from the beginning of the course till the end of the course, जो भी 13, 14, 15 days हम लोग एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं to understand this course, we need to understand the relationship between media, society and culture and how these three variables they interplay with each other. पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मीडिया क्या होता है, then you should further go and understand what is society and what is culture, especially for the students who might be non-sociology students. Then after you have understood the three basic concepts, we will dwell further into deeper into the concept and try to understand and try to ask and question, is there any relationship between media and society and culture? क्या वो तीनों आपस में interlinked हैं or are they interlinked in two pairs? What is the relationship between media and society, society and culture, culture and media? And you can similarly triangulate and understand that what is the relation between these three aspects. Then as we move forward into the course, and welcome all of you to be here, let us look at what is the course overview. So if you have read the brochure of the course, you have seen this, that the course is basically we are trying to understand the relationship between media, society and culture. Now at the time of post-independence era in 1947, when we become independent by the British Raj, at that point of time we mostly have the advent of public owned media, चाहे वो आपका ऑल इंडिया रेडियो हो या after that it is Doordarshan that comes into the picture, and that is why we thought of inviting Mr. Vivek Shukla from Doordarshan, because it's in one of the ways one of the very first television media that we have witnessed in the history. So when you're talking about the narratives till about 1990s, then we are talking about the post-independent era and public-owned news houses. So every media house, every form of communication, whether it was largely say the All India Radio or the Doordarshan, which is the mass media, in both of them they were owned by the public. What do you mean by public? They were government owned. So everything, the programs, the shows, the serials, the movies, etc., all that were showcased on that were mostly for the welfare of the public and largely raising public issues, public problems. Like post-independent era, a lot of focus of Doordarshan and All India Radio was a nationalistic program because we were focusing on nation building. So all the kind of songs, serials, Doordarshan screened a program. I don't know if Mr. Vivek Shukla would talk about it, but he's there's a program known as Bunyad, which was talking about the partition, right? The partition of India and Pakistan. So all of that point of time, we were focusing on the aspect of nation building, right? Building of a healthy society, not just nation, building of interpersonal relationships. And then we started focusing on other national problems, like problems of caste discrimination, problems of gender discrimination, problems of farmers, problems of industrialization, problems of alienation, so on and so forth. So these programs, because they were public owned, they did not have any profit of their own, or they were not run only on TRPs like what we do today. Their focus was very different from what the focus is today. So they largely focused on public welfare programs or public welfare measures. As we go ahead till 1991, this is a brief overview, we enter into the era of liberalization, privatization and globalization. And in 1991, there's a whole shift. The entire shift from public owned media houses, चाहे वो आपका ऑल इंडिया रेडियो हो या दूरदर्शन हो, to 1991, जहाँ पे we begin with privatization, liberalization, globalization. There's a complete massive shift in the entire media industry, right? Now, as we were seeing the course overview, we reached at 1991 where I said that the entire privatization by large and privatization of media houses begin in 1991, and that is the time when we see there is huge corporate capitalism, huge accumulation of powers which lies with some media houses
which I will be discussing in one of my lectures that I'll be taking next week on corporate capitalism. Next point, if you see, is about the public owned media, which we have discussed a lot and we have highlighted today in this lecture. After that, the next point is where you guys are situated, where you guys are born, where you guys are living, and you are living on day-to-day basis, and that is the question of new media. So the new media, what is new media, what is the impact of social media, how they are interacting, and how the faces of media has been changing. So when I teach my students about media, I roughly divide it into three epochs or three different tables. One, when we are talking about traditional media, then you're talking about the modern media or the mass media, and then the third part where you're talking about the new media, the social media, or the internet linked mass media. So internet becomes the deciding factor in the third type of media studies. Okay, and ultimately, with the advent of mass media, new media, we see that every community has got a different form of communication, has got a different form of media, and has got different forms of influencing each other. Because when you're talking about media, all kinds of media have some influence on culture, all kind of medias have some influence on the society. Now many people argue that sometimes it is also the society and it is also the culture that has got an impact on the media. So it's vice versa. But when we try to weigh and balance, then we are trying to say which has got more impact and which has got lesser impact as far as media is concerned in sociology. We are not students of journalism, we are not students of mass media, we are students of sociology, psychology, political science, economics. So our interest in media is how the media is impacting the society by large. Now let us come together and have a quick look at what the course is going to be all about. कि हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर विवेक शुक्ला, हु इज़ द प्रोग्राम प्रोड्यूसर है दूरदर्शन केंद्र लखनऊ, उन्होंने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है एंड उनका बहुत बहुत स्वागत है. वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम होस्टेड बाय आईटी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम सब की तरफ से, सारे फैकल्टी की तरफ से, बच्चों की तरफ से. अभी भी आप एक अपने लाइव प्रोग्राम में व्यस्त थे और वी फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड कि आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से अपने लाइव प्रोग्राम के साथ आप ऑफिस से डायरेक्टली हम लोगों से जुड़ रहे हैं, जिससे कि आप अपने दूरदर्शन के साथ अनुभवों के बारे में कुछ बच्चों को बता पाएँ. प्लस अभी हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सबसे प्रथम सोर्स ऑफ मीडिया है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है और इतने सालों से चल रहा है. दूरदर्शन ऑलमोस्ट ऑलरेडी 65 ईयर्स प्लस क्रॉस कर चुका है. तो आपके अनुभव से हम लोगों को एक इस कोर्स को शुरुआत करने के लिए एक दिशा मिलेगी, और जिस प्रकार से हम सोसाइटी, मीडिया और कल्चर तीनों का समावेश करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को एक भूमिका बांधने का अवसर मिलेगा. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. औपचारिक तौर से स्वागत करने के लिए आई रिक्वेस्ट वसुंधरा टू प्लीज वेलकम आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज के हमारे 15 डे सर्टिफिकेट कोर्स में आप सबका स्वागत है. इससे पहले कि हमारे मुख्य अतिथि श्री विवेक शुक्ला जी आज के विषय दूरदर्शन के 65 वर्ष समाज को समर्पित पर अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त विवरण आप सबको बताना चाहती हूँ. श्री विवेक शुक्ला जी विगत 35 वर्षों से आकाशवाणी, दूरदर्शन, रंगमंच, पत्रकारिता एवं फिल्मों में अनाउंसर, प्रोड्यूसर, अभिनेता निर्देशक, लेखक और अभिनेता निर्माता निर्देशक के रूप में कार्य करते चले आ रहे हैं. प्रत्येक विधा में उनको अनेकों पुरस्कार दिए गए हैं. वह नमस्ते यूपी, ओडीओपी और कई अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों, लाइव कार्यक्रम और डीडी यूपी पर विशेष कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं. वह विजय, चतुरी चाचा, शून्य और हमारा देश जैसे धारावाहिकों के निर्माता और निर्देशक भी रहे हैं. साथ ही साथ उन्होंने गदर, ओमकारा, अम्मा, आवाज, बाबर और निशान जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक अभिनेता, सहायक निर्देशक और उत्पादन नियंत्रक के रूप में अपने कौशल का प्रतिपादन किया है. वर्तमान में श्री विवेक शुक्ला जी प्रोग्राम प्रोड्यूसर के रूप में दूरदर्शन लखनऊ में कार्यरत हैं. बिना समय बर्बाद किए मैं आज के मुख्य अतिथि श्री विवेक शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ
और इस सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत को घोषित करने के लिए आग्रह करती हूँ। थैंक यू सो मच वसुंधरा। और दूरदर्शन का मेन उद्देश्य यह है कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीनों को लेकर के दूरदर्शन आया। जब दूरदर्शन था उस टाइम कोई चैनल और नहीं थे, बाकी चैनल सब 93 के बाद आए, 1993 के बाद से। और आज भी दूरदर्शन, लोग हर चैनल पे खबरें देखते हैं, लेकिन सही खबर क्या है, बिना मिर्च मसाला लगाए हुए सही खबर क्या है, उसे देखने के लिए लोग दूरदर्शन ही देखते हैं, और सुनने के लिए लोग आकाशवाणी सुनते हैं कि सही खबर क्या है। और हर वर्ग के लोगों के लिए दूरदर्शन में अलग अलग कार्यक्रम हैं। बच्चों का अलग है, और कृषि जगत या किसानों का प्रोग्राम अलग है, पहले चौपाल नाम से आया करता था। तो और म्यूजिक का प्रोग्राम अलग है, यूथ का प्रोग्राम अलग है। तो हर विधा के लोग इसमें अलग अलग तरह से जुड़ते हैं। यहाँ पे दूरदर्शन का समाचार का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर के समाचारों को साथ जोड़ करके दूरदर्शन चलता आ रहा है। इसके बारे में कुछ और क्या अलग चीज बताना चाहूंगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दूरदर्शन सबसे पहले पॉपुलर हुआ था हम लोग सीरियल से, उसका आया बुनियाद, उसका रामायण, फिर महाभारत, भारत एक खोज। तो ये ऐसे सीरियल हैं जो अभी भी रिपीट होते जा रहे हैं। और अभी कोविड के दौरान रामायण जब रिपीट हुई थी, तो इंडिया में सारे चैनल में टीआरपी में नंबर 1 दूरदर्शन ही था। लोग सोचते हैं दूरदर्शन कितना देखा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के हर कोने में दूरदर्शन है। बाकी चैनल्स उतने नहीं है जितना कि दूरदर्शन है वहां पर। एक्चुअली में दूरदर्शन की जब शुरू हुआ था तो आकाशवाणी के साथ ही इसकी शुरुआत की गई थी। और ये आकाशवाणी, ये जो दूरदर्शन नाम पड़ा है, इनका 1975 में हिंदी नाम दूरदर्शन पड़ा है। तो इसमें आज भी सरकारी चैनल, जिसे बोलते हैं सरकार की सारी सही खबरें, और कोई जिसमें जो भी न्यूज आपको दिखाई जाती है या जो भी प्रोग्राम दिखाया जाता है, वो पब्लिसिटी के लिए नहीं होता है। ये ओरिजिनल प्रोग्राम ही इसमें दिखाए जाते हैं। और इसमें तरह इसकी लोकप्रियता यही है कि एक टाइम था जब यहाँ एक फिल्म और चित्रहार की बदौलत पूरा दूरदर्शन चलता था। और ये क्या एआईआर का एक हिस्सा ये अभी भी है, और ये रेडियो दूरदर्शन, ये दोनों ही सिस्टर कंसर्न है, दोनों एक दूसरे के साथी है, समझी जाती हैं इनको। और दूरदर्शन में जहां तक बात यह है कि आज का यूथ जो है कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ की न्यूज देखता है, एजुकेशनल प्रोग्राम देखता है। कोरोना के टाइम में जब स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, तो दूरदर्शन ही एक ऐसा माध्यम था जिससे पूरे दिन कॉलेज के बच्चों के लिए क्लासेस चलती थी, हर क्लास के लिए। 5th 6th से लेकर के इंटरमीडिएट तक के बच्चे पढ़ाई करते थे, और ये दूरदर्शन ही था जिसने 2 साल तक लगातार एजुकेशन दूरदर्शन से दिखाई। शायद ये अकेला चैनल है जिसने ये सब दिखाया। लखनऊ चैनल बहुत अब हर जगह दिखाया जाने लगा है। इसमें संगीत का भी प्रोग्राम है, अलग अलग ऑल ओवर वर्ल्ड। सोचिए, सैटेलाइट चैनल जब से हो गया है, तब से आप इसको कहीं भी देख सकते हैं वाली। तो वो उस टाइम में उसमें एज असिस्टेंट जुड़ा, लेकिन जब मैं जुड़ा उसके ठीक ही 1 साल के अंदर एक यहाँ से एक सीरियल बना जिसका नाम था नीम का पेड़। मैं इसमें प्रोडक्शन में जुड़ गया, और मुझे नहीं पता था ये सीरियल 1990 में स्टार्ट हुआ था, और मुझे नहीं लगा था कि ये सीरियल इतना पॉपुलर होगा। ये आज भी कई देशों में दिखाया जा चुका है ये सीरियल, और आज भी रिपीट होता है तो लोग इसको देखते हैं। इसमें पंकज कपूर ने मेन भूमिका निभाई थी। उसके अलावा हम लोग के इसमें पीएम की कवरेज, सीएम कवरेज और बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ चलते हैं। अभी ओडीओपी का जैसे इन्होंने नाम लिया, एक जनपद एक उत्पाद, उस प्रोग्राम के तहत ऑल ओवर यूपी हम लोगों ने जाकर अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए, ताकि ये जागरूकता फैलाने के लिए था कि जैसे गोरखपुर में गए, वहाँ क्या चीज खास है, मथुरा गए क्या खास है, कानपुर गए, फिरोजाबाद में कांच का व्यापार है, आगरा में जूते का है। किसी को पता नहीं था कि मथुरा में पीतल की टोटी, बहुत कम लोग जानते हैं,
वहां पे इतना बिजनेस है कि बहुत से घरों का रोजगार उसी पे चलता है। तो एक जनपद एक उत्पाद इस मामले में भी बेहतर रहा कि लोगों को पता भी चले और हम लोगों ने उसको दिखाया, जिससे कि उन लोगों के इसमें फायदा भी हुआ, उनके प्रोडक्ट बिके। इसी तरह सरकारी प्रोग्राम लोग करते रहते हैं। म्यूजिक के प्रोग्राम में अभी हम लोगों ने अयोध्या में प्रोग्राम किया 10 दिन का। 10 दिन के प्रोग्राम में हमने भक्ति संगीत का प्रोग्राम था। हम लोग राम रमैया गाए जा करके अयोध्या से किया। जब भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण हुआ था तब तो लगातार 10 दिन हम लोगों ने किया। उससे रामलीला जैसे हर साल दशहरे पे 10 दिन 15 दिन के रामलीला का सजीव प्रसारण हम लोग करते हैं दूरदर्शन से। खिचड़ी वाले दिन गोरखपुर से रात 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी बोल रहे हैं। मैं लगभग 7-8 साल से उनकी कवरेज कर रहा हूँ। सीएम बनने के पहले भी, सीएम बनने के बाद भी वो हमेशा पहली आरती 3:30 पौने 4 बजे होती है, जिसको हम लोग दूरदर्शन वाले कवर करते हैं। उसके अलावा सारे जो भी लाइव प्रोग्राम होते हैं या आपको जितनी चीजें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, और वो उसके लिए हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम लाइव कवरेज करती है, लाइव दिखाती है। आप लोगों ने पहले कभी विधानसभा नहीं देखी होगी, बचपन में मैंने भी नहीं देखी थी, लेकिन आज विधानसभा सत्र में हम लोग पूरा विधानसभा दिखाते हैं। बातचीत से लेकर सारी चीजें लाइव दिखाते हैं। ये नहीं कि रिकॉर्डेड, लाइव क्या चल रहा है विधानसभा में, तो विधानसभा दिखाते हैं। तो ये एक सरकारी चैनल ऐसा है कि ये जो चीजें दिखा रहा है ये केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए ये दिखाया जा रहा है, ताकि विकास के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो दूरदर्शन आदमी देख। मनोरंजन गाने भी हैं। अभी मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, गोल्डन हिट्स। शायद ये यूट्यूब में भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा। दूरदर्शन का जो मेरा प्रोग्राम है ये सैटेलाइट चैनल पे 1 घंटे का नॉन स्टॉप फिल्मी गीत हम दिखाते हैं। किसी और चैनल में आप जाइए 2 गाने देखेंगे, उसका 5 मिनट का ब्रेक आएगा, और ये 2-3 बार दिन में रिपीट होता है। इसका नाम है गोल्डन हिट्स। तो हर एक का ख्याल रखते हुए दूरदर्शन चल रहा है, और ये सबसे पुराना है, तो और आज तक उसी इज्जत से दूरदर्शन चल रहा है। किसी कुछ पूछना तो पूछ सकता है मुझसे। थोड़ा आप हम लोग को नीम के पेड़ के बारे में बता सकते हो? वो सीरियल बहुत ही पॉपुलर हुआ, आज भी उसके बारे में यूट्यूब भी करेंगे तो बहुत सारा डिटेल मिलेगा। उसका विषय क्या था जो इतना वो महत्वपूर्ण हो गया है? ये डॉक्टर राही मासूम रजा साहब का नॉवेल था नीम का पेड़। उसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने ने लिखी थी। तो कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई, तो बाद में स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी। लेकिन शुरुआत ये हुई कि नीम का पेड़ की शूटिंग में 90% आर्टिस्ट लखनऊ के थे। इसकी शूटिंग सुल्तानपुर में हुई थी। पंकज कपूर इसमें मेन हीरो का रोल कर रहे थे, और उसके अलावा लखनऊ के जितने वरिष्ठ से कलाकार से नए कलाकार तक सबने उसमें काम किया। तो और नीम का पेड़ बेसिकली उत्तर प्रदेश के गांव की एक कहानी है कि गांव में किस तरह जमींदार लोग एक गरीब को कैसे करते हैं, लूटते हैं, और कैसे गरीब का लड़का जब नेता बन जाता है तो फिर वो गांव वालों को कैसे दबाता है, और फिर वो भी उसी जमींदार की तरह बिहेवियर करने लगता है, क्योंकि उसके बाद भी ताकत सत्ता आ जाती है। नीम के पेड़ में खास बात यह कि इसका टाइटल सॉन्ग जगजीत सिंह जी ने रिकॉर्ड किया था, और आज भी वो टाइटल सॉन्ग में अगर टाइटल सॉन्ग लोग सुनते हैं या कहीं दिखाया जाता है तो नीम का पेड़ का टाइटल सॉन्ग उसमें एक होता है। और काफी नए लोगों को उसमें काम मिला। लखनऊ से डेली सुल्तानपुर लोग आते आते थे, बम्बई के आर्टिस्ट थे। और जो रोचक चीज है वो मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम में इस कंप्यूटर वगैरह कुछ था नहीं, स्क्रिप्ट वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी। तो नीम का पेड़ के जो राइटर थे डॉक्टर राही मासूम रजा, वो बॉम्बे में रहते थे। उन्हीं के मित्र थे यहाँ के डायरेक्टर विलास जाफरी साहब। तो अक्सर स्क्रिप्ट चल रही है, अगली स्क्रिप्ट लानी है तो कैसे लाना होगा। तो जैसे मैं ऑफिस में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके स्क्रिप्ट ले आओ। तो आप सोचोगे अरे स्क्रिप्ट ले आओ कि ये जाएगा अभी जाके किसी घर जाके स्क्रिप्ट ले आएगा। तो साहब मैं घर से घर में तो उस टाइम मोबाइल वगैरह भी नया नया ही था, मोबाइल वगैरह नहीं था घर में, वही PNT फोन चलते थे।
मैं ऑफिस सुबह आता था, मुझे पता नहीं होता था मुझे स्क्रिप्ट लेने जाना है। जब मुझसे कहा जाता है स्क्रिप्ट लेने जाइए, तो मैं घर फोन करके बताता था मैं स्क्रिप्ट लेने जा रहा हूँ, कल लौटूंगा। होता यह था कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा विवेक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी से मुझे एयरपोर्ट भेजते थे। एयरपोर्ट से हम जाते थे, वो फ्लाइट लेकर के बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे पहुंच के राही साहब के घर पहुंचे। अब जैसे राही साहब मुझे भांजे की तरह मानते थे, तो वो कह रहे बेटा जाओ बम्बई घूम आओ, जाके हम स्क्रिप्ट लिखे रहे हैं। तो बेचारे नीचे गद्दे बैठ के पेन से स्क्रिप्ट लिखते थे, तब टाइपिंग वाइपिंग का नहीं होता था। रात में उनके खाना खा के सोता था मैं, नेक्स्ट डे सुबह वो तक उनकी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में होती थी, और वो अपनी गाड़ी से मुझे एयरपोर्ट छुड़वाते थे। एयरपोर्ट से मैं लखनऊ आता था, लखनऊ पे यहाँ पे दूरदर्शन की गाड़ी खड़ी होती थी, उससे मैं ऑफिस आता था। यहाँ पे आके उसकी फोटो कॉपी, कागज की फोटो कॉपी, हम लोग नदवा कॉलेज पर फोटो स्टेट मशीन हुआ करती थी, जहाँ ज्यादा कॉपी ऑपीज होती है, उसको ले करके हम लोग, यहाँ का एक आदमी वो सारी स्क्रिप्ट की कॉपियां लेकर सुल्तानपुर जाता था। इस तरह अगले एपिसोड की स्क्रिप्ट इतनी महंगे प्रोसेस से हो करके सुल्तानपुर पहुंचती थी। तो नीम का पेड़ का ये वाकया जो मेरे साथ जुड़ा है, मुझे सबसे ज्यादा ये हमेशा याद रहता है। इसको मैंने कई जगह कोट भी किया है। नहीं, बहुत ही मधुरता से आपने सुनाया, और ये आखिरी का जो आपने पूरी कहानी सुनाई, उससे हमारे आज के जो बच्चे हैं वो समझेंगे कि मीडिया इंडस्ट्री भी कहाँ से कहाँ आ गई है। एक समय ऐसा हुआ करता था जहाँ आपको खुद फ्लाइट लेके जाना है, दिल्ली में रात में टेप पहुँचाना है, तब वो सुबह उसका प्रसारण होगा। या आप बॉम्बे जा रहे हैं फ्लाइट से, आप स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं, और आज के ज़माने में हम एक बटन दबाते हैं और एक इन्फॉर्मेशन हम जी कहीं से कहीं भी पहुँचाई जा सकती है। जी जी। बच्चों के पास भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं सर से, अगर आपको कुछ भी पूछने की इच्छा है तो। दर्शन की बात हुई है। हेलो। जी बिल्कुल, बताइए। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई थिंक ये बात है 91 या 92 की। आपके आईटी कॉलेज में ड्रामा डायरेक्ट करने के लिए सूर्य मोहन जी आए हुए थे। तो उस पे नाटक का नाम था इंसाफ का घेरा। तो आपके कॉलेज की एक स्टूडेंट हमारे जानने वाली थी, वो उसमें रोल कर रही थी, निवेदिता भट्टाचार्य। शायद लोग अब समझ गए होंगे। वो निवेदिता ने आके फिर दूरदर्शन में नाटक और सीरियल में काम शुरू किए, दर्पण में शुरू किया। उसके बाद निवेदिता, और जब मैं बॉम्बे गया नीम का पेड़ के बाद, तब निवेदिता ने भी बॉम्बे शिफ्ट किया। आज वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, और वो उनकी शुरुआत एक आईटी कॉलेज से ही हुई थी। In different formats, and you're talking about the role of Doordarshan. Some points that he highlighted: number one, like he highlighted about the Neem Ka Ped with Pankaj Kapoor, and he said that how it was talking about zamindari and caste based exploitation and also politics, क्योंकि जब वो जमींदार का लड़का नेता बन जाता है, then how there is double power that is playing onto the life of powerless people, right? Then he also talked about the process of getting scripts. You know, you would get scripts from by air. He would have to fly down to Bombay, get the script, and come back to Lucknow the next day. Similarly, on a personal level pe he had shared with me that when you're talking about live telecasting of programs was not possible. So even when Lucknow Doordarshan was formed, they used to make programs, and jo cassettes hote the video cassettes, they were sent by flight to Delhi, and then they would be published, telecasted on the television the next day. So from that time of era till today, where we have come to a click. Two more very important things that he shared with us is, number one, he said that during COVID-19 lockdown, when not people like us who had the facilities of internet and Google Classroom and virtual mediums जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, many people did not have access to that. तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स के जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, एडुकेटिव प्रोग्राम्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स, फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड फॉर यंग चिल्ड्रन was telecasted on Doordarshan throughout the day. Matlab, right from teaching A, B, C, D, E to programs like for SSC, UPSC, government, graduation and post-graduation courses, many programs were run on that. And of course, we did not see that with any other private channel. And the last thing that I liked about one point that Mr. Vivek Shukla raised was about Suchna, Siksha and Manoranjan.
You see the point when you're talking about media, any media form. कल से जब आप और media industry में introduce होगे, you will realize that media is not just television. You have print media, you have radio, you have new media, you have social media, you have so many different mediums through which we are communicating today. किसी का अगर पर्पस क्लियर है, right in the beginning, if that media has a clear purpose, that the goal of my channel or my program is Suchna, Siksha and Manoranjan, that's giving the right information to the communities, educating the communities, and as well as entertaining the communities. And all three things, they are so important. We are working on Suchna, Siksha and Manoranjan, and how, if that is the ethos of your channel, then that is the message that you're communicating to the larger society. And if your boardroom of any media house decides that the goal of our particular channel is profit at any cost, then that is what they'll be translating into the society. So keep these 5 things in mind from today's lecture. Now, to share his viewpoints with us and explain us so clearly. On behalf of the PG Department of Sociology, Isabella Thoburn College, I would like to thank you for the lecture, our president, our principal, Dr. Smita Verma, head of department, Dr. Somil Sharma, course curator and coordinator, and our respected faculties, Ms. Sarita Kharko, Mrs. Sneha Singh, and Dr. Saroj. I also extend a warm gratitude to all the students for their enthusiastic participation in this session. We hope to see you in the next lecture. Thank you, everyone.